ରାମଚରିତ ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ରାମଚରିତ ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ସେପଟେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହନୁମାନ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। କହିଲେ ଏତେ ବଡ଼ କାମରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ବୁଝି ବିଚାରି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ନା ନା, ବିଚାର କଲେ ରାତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତେବେ ଅଣିମା ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ନିଜକୁ ଛୋଟ କରିଦେଇ ରାତିରେ ଲଙ୍କା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ କିଏ? ହନୁମାନଜୀ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଲଙ୍କିନୀ ଦେଖିଦେଲା। ଆଉ ଲଙ୍କିନୀ କିଏ? ନଗର ଦେବୀ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଗାଁରେ ସବୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ନାହାନ୍ତି କି? ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କାଳିକା, ମଙ୍ଗଳା, ଦୁର୍ଗା, ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ବଗଳାମୁଖୀ, ରଣଚଣ୍ଡୀ, ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ, ମଗ୍ରମୁହିଁ ଚଣ୍ଡୀ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଧାରୀ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ନାହାନ୍ତି ନା ଦେବୀ ଦେବାଦେବୀ, ସେ ସବୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ତେଣୁ ଲଙ୍କା କଟକର ନଗର ଦେବୀ କିଏ? ଲଙ୍କିନୀ। ଲଙ୍କିନୀ ରାକ୍ଷସପୁରୀରେ ଅଛି ମାନେ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାର ଜାଣିଛ? ଆଜି ଏ ବାଟଟାରେ ଯୋଗେଇଛି ରାବଣ ଭଳିଆ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ, ଯାହାକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି ସିଏ ଛୋଟିଆ ନା କଣ? ତେଣୁ ଲଙ୍କିନୀର ଦୃଷ୍ଟି ଭାରି ଚାରିଆଡେ। ଛୋଟ ହେଇକିରି ମଶାତୁଲ୍ୟ, ଛୋଟ ହେଇକିରି ସିନା ହନୁମାନଜୀ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ଲଙ୍କିନୀ କହିଲା ହଇରେ ମାଙ୍କଡ। ହନୁମାନଜୀ ଅନେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ମତେ କିଏ ଚିହ୍ନିଛୁ? କହିଲେ କିଏ? କହିଲେ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣର ମୁଁ ନଗର ଦେବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି, ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ଲଙ୍କା କଟକର ମୁଁ ଲଙ୍କିନୀ। ମୁଁ କଣ କରେ ଜାଣିଛୁ? କହିଲେ କଣ କରୁ? କହିଲା ମୁଁ ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଖାଏ। ଯିଏ ଚୋର ଭଳିଆ ପଶୁଥିବ ମୁଁ ସେ ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଖାଇଦିଏ। ମୁଁ ହଉଛି ଚୋର, ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ହନୁମାନଜୀ ନିଜ ରୂପକୁ ଆସିକିରି କହିଲେ ତୁ ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଖାଉ? କହିଲା ହଁ। କହିଲା କେଡେ ମିଛଟେ କହୁଛୁ? ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ଏ ଲଙ୍କିନୀ କହିଲା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? କହିଲେ ତୁ ଡାହା ମିଛ କହୁଛୁ, ତୁ ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଖାଉ? କହିଲା ହଁ। କହିଲେ ଚୋର ମାନେ ତୋର ଖାଦ୍ୟ? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ଚୋର ମାନେ ଯଦି ତୋର ଖାଦ୍ୟ, ରାବଣ ବଞ୍ଚିଛି କେମିତି? କହିଲା ମାନେ? କହିଲେ କେ ତୁ ଯାହାର ଚାକିରି କରିଛୁ, ଆଉ ତୁ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଅଛୁ, ପୋଲିସ ବାଲା ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଅଛି, ତା ପୁଅ ଚୋରି କଲେ ଧରିବନି? হ্যাঁ যে প্রকৃত নিষ্ঠাবান পুলিশ অফিসর পুଅ চোরি করেছি ছাড়িদেব, তাকে ধরবনি? ট্রাফিক নিয়ম ভাঙ্গিলে ট্রাফিক ইন্সপেক্টর পুলিশ তা পুଅକୁ মাড় দবনি, জরিমানা হবনি? কলে হ্যাঁ কোণ কହୁଛ? কলে রাবণ তো সবুঠু বড় চোর। কলে কোণ? কলে কিয়ে মকা চোর, কিয়ে পকা চোর, কিয়ে টঙ্কা সোনা চোরি করে, সে বা স্ত্রী চোরি করেছি। তো মালিক যে রাবণ, তো সরকার जो रावण आ सी परा नारी चोर। तू कहू चोर मान तू खाऊ, आ चोर मान जदि खाऊ तू तो रावण को आग खाइबा कथा। तेणु तू मिछ कहू, तू चोर को खाई शिखी ना, रावण को खा तो पेट पुरिब। तेबे सजन वृंद सेठी लंकिनी सांगेरे हनुमान जी बहुत समय कथोपकथन हैला। से कथोपकथन गुड़ाक उह्य रही तुलसीदास गोस्वामी एते बड़ आकार रे लेखि नाहंती। से कथबार्ता कौन जानिछ कि हनुमान जी समस्त को प्रथमे बुझाती, न बुझिले कौन करती? आशारे देखुन क्लास रे 5 थर गणितटा बुझेइले, गोटे पिला अन्य मनस्क होची बिल्कुल बुझुनी। आजिकाली सिना माड़ उठी जाइछि स्कूल कॉलेज रु, किंतु सेते बेले आम बेले तो एते माड़ जे कहना। जेते बेले पिला बारंबार न बुझिबो सार कोन करिवे? पिटिबे धरिकरी। हनुमान लंकिनी की बहुत बुझेइले, कहले देख रावण अन्यायी अत्याचारी नारी चोर, एटा लंपट, एटा भ्रष्टाचारी, ये व्यभिचारी। तू ता पाखरे चाकरी करिजु, तू मते चिन्हिनु, प्रभु रामकर मु दूत, मु आसीछि मा जानकी को ठाप करिया पई। जेते कहिले बे तो तम गुणी राक्षसी लंकिनी बिल्कुल बुझिलानी। आ बुझिलानी जेते बेले हनुमान जी कोन कले जानी चंदी कहूना, भल किरी गोटे ब्रह्मचापुड़ा देला। ब्रह्मचापुड़ा दबारु लंकिनीर लाभ हैला ना क्षति हैला? कौन है? लाभ है। आम ओडिशा रे गोटे लोक कथा नहीं, कहले सदगुरु जेबे मारे गोईठा, अंधार घर रे जले बैठा।
कले सदगुरु जेबे मारे गोईठा अंधार घरे जले बैठा आ लंकिनी ज्ञान नथिला सतसंग हो गला सतसंगर फलश्रुतिटा सेते बेले चापुड़ारे बाजिला बुझी पारछ ना प्रथम करी बुझिलानी जेते चापुड़ारे ब्रह्म चापुड़ा देले साधारण चापुड़ा अलगा ब्रह्म चापुड़ा अलगा बुझी पारछंती ना साधारण चापुड़ा अलगा हनुमान जी ब्रह्म चापुड़ाटे जेते मारी देले तार ज्ञान उदय हो गला लंकिनी जेते ज्ञान उदय हो गला मने पड़गला पूर्व स्मृति कहले हाँ हाँ हनुमान जी ब्रह्मा मते कही मु ब्रह्माकठू शुणी रावणर से दिन पतन आरंभ हम जो दिन तू गोटे मांकड़ बानर ठू चापुड़ा खाइबू एटा विधि निर्दिष्ट कथा तेबे एबे बुझीगली आपण प्रभु परमात्मा नारायण दूत साजिकी आसी मते आज साधुंकर संग लाभ हो गला हनुमान जी सब बड़ साधु ना तेणु साधुंकर संग लाभ कली मु आज तेणु साधुंकर माड़ सुरक्षार बाड़ बुझी पारे कथाटा तबे लंकिनी कहला मोर आज सतसंग हो गला तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुल्य न ताई सकल मिली जो सुख लाई सतसंग कहले सतसंगर सुख को ज्ञानर सुख को गोटे पलारे रखिबो निकिति रे आउ गोटे पटे धन संपत्ति चतुर्वर्ग अपवर्ग धर्म अर्थ काम मुख्य ए चतुर्वर्ग को गोटे पलारे रखिबो गोटे पलारे सतसंग रखिबो सतसंग भारी हबो एटा किए कहूची लंकिनी कहले जहा आज हनुमान सहित मोर सतसंग हो गला मो जीवन रे मु केबे असुरपुरी रे थाई करी केबे सतसंग करी नाही तेबे सतसंग करी लंकिनी आनंदित हो गला स्वर्ग प्राप्तिर पुण्य धर्म अर्थ काम मुख्य चतुर्वर्ग को से आज पाई गला भलिया ताको अनुभव हैला तेबे जहा हेबु तापरे हनुमान क्षुद्र रूप रे प्रवेश कले सजन वृंद शत्रु आगरे केबे भी बड़ पणिया देखैब नाही छोटिया हेबु तेन हनुमान जी कौन कौ रूप गले छोटिया रूप गले छोटिया रूप गले शत्रु आगे सर्वदा अस्पष्ट रहिब स्पष्ट हम ना जानिच कि नहीं कलिजुग धन संपत्ति जिते था कहबनी मोर एत लक्ष टंका अच्छी बोली गुड़े लोक कहते मिछे धार ने सुझीबेनि तेणु तुमर प्रकृत परिचयटा केबे स्पष्ट करिब नाही साधु आगे स्पष्ट करिवो साधारण लोक आगे स्पष्ट करिब नाही ए कथा जानिचंती ना जानि नाहंती आ समस्त आगे खोला हो जिवो बोले तो मल एमिति दुर्दशा आनिबे जे तेणु मन ध्यान दे शुणिबे सारा लंका नगरी बुलिकिरी हनुमान जी देखुचंती जनक घर कबाटरे श्रीराम लिखा है ब्राह्म मुहूर्त आसीगलानी दीप शिखा जलिलानी तुलसी चौरा मूले आ भितरु तो खाली शुभुची जय राम जय राम जय जय राम हनुमान जी कहले अच्छा लंकापुरी रे हरि शब्द लंकापुर रे कोठे श्रीराम नामटा शुभुची सबुआडे हनुमान देखिले कोठी सौजन्यता नहीं शालीनता नहीं राक्षसपुरी नारी मानकर चुटी खोला हेकरी सोइला सेजरे पड़ी चुटी केबे खोला करिवेनी द्रौपदी माँ अभिशाप अच्छी जे हाँ चुटी के खोला करनी जिते बड़े लंका कटक देखीदे सब चुटी खोला होकर शोचंदी लंगला मुकुला होकर राति राक्षस मान शालीनता ना एमती असदाचार देखिले का घरे सदाचार देखिले ना जाइकरी जिते देखिले आहा जनक घरे तो कौन कबाटरे राम लेखा धीरे धीरे ब्राह्म मुहूर्त ही आसुची हनुमान आखि दुर्जन भितर सज्जन को चिन्ह दे काली कही टिके सूचना देती तबे आपण मैंने भी दुर्जन लोक को चिन्ह पारे सज्जन लोक को चिन्ह पारे कलिजुग सब बड़ कथा कौन जानिच बाघ को चिन्ह पार साप को चिन्ह पार इलेक्ट्रिक करेन्ट को चिन्ह पार मनीष को चिन्ह पार ये बाघटू धृत आतताई क्रूर जीव हाँ कि नहीं तुमर भारी क्षति करदेवे ना साधु बोली गेरुआ वस्त्र पिंधि घरे पशिजे आपड़ कहे भल लोकटा भल घरे शो हे घरे गोटे गडरेज थिला रे बाबा सकाळ पाइला बेलू आपण उठी ना सी ब्राह्म मुहूर्त पूर्व उठी पड़े खोला आपणकर गडरेज मेला खोला सबू धरिक पलैथे तेणु जशवंत दास कहलेनि कि बड़ मायाबी जीवन नुहे कारी कहले माया भी जीवन नुहे कहारी माने मनीष कहारी नुहे बापर नुहे पुअर नुहे भारी शत्रुता करुचंदी कौन कले समस्ते समस्तंकर निजर हेई पारिबे काहींकि माया भी हेइचंती कोउटा करि नाहंती बोली दिने न भजु राम कृष्ण श्री हरि बड़
कहले बड़ माया भी जीव नुहे कहा शशुर घर को पचारे पछे निज घर को पचारे अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले शशुर घर को वैकुंठ मणिबे निज घर खाए उई हृदय सिंहासने शालक बसिब कांदी मरुथुब भाई एटा हूँ कलिजुगर रीति तेणु सजन वृंद नाई से संपर्क अधिका कही पारिनी जी कहली से तेरे मन ध्यान दे शुणिबे तेरे आपण सजन दुर्जन भितर फरकटा केमिति बारी पारिबे हनुमान जी केमिति जानिले एइटा भक्त बोली से भक्त किए कि विशेष भाव भीषण भाव जी प्रभु नाम को स्मरण करुचंती सीए विभीषण बुझीपाल ना कथा तेरे मन ध्यान दे कथा को श्रवण करेंगे ये हनुमान जी चिन्हिले केमिति चिन्हिबार शक्तिटा कौटु आसिला तुलसीदास गोस्वामी कहउचंती राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा हृदय हरस कपि सजन चिन्हा बोल संकट मोचन हनुमान जी की कहले राम राम तेहि सुमिरन किन्न प्रभुंकर नाम अहरह जपुचंती बोली जी नाम जपे ता भितर कौन हुए अमृत क्रिया सृष्टि हो जाए मनीष भितर विष अच्छी पर चिंता पर हिंसा पर पाठ सब भितर विष क्रिया गुड़ाक किंतु सब बेले जी नाम जप करे भगवान ता शरीर प्रत्येकटी रक्त कणिका अमृत परिणत हो जाए जी अमृतमय भावना तार तो सब सफा देखा जाए ताकू स्पष्ट आ दिव्य ज्ञान हासिल करिवार दिव्य दृष्टि हासिल करिवार केवल नाम ना नाम आहा ये कहूना निराकारवादी माने ए संसार रे दी प्रकार लोक ना कि आम हेले साकारवादी रामकृष्ण को आम भगवान रूप में पूजा कर गुड़े भगवान को विश्वास करती ईश्वर ऊपर आस्था अच्छी किंतु से होती निराकारवादी तेणु निराकारवादी माने कौन कहते कहले वेदर लिखाई न तस्य प्रतिमा अस्ति कहले यजुर्वेद लिखाई न तस्य प्रतिमा अस्ति माने से भगवान कौन सी प्रतिमा ना मूर्ति ना चित्र ना से देह धारण करती ना एटा सी लिखिं न तस्य प्रतिमा अस्ति प्रतिमा शब्दर अर्थ है मुझे कहे जने भल लोक तमे मोर पितृ प्रतिम तांको बहुटी लक्ष्मी प्रतिमा लक्ष्मी ना लक्ष्मी का भली लक्ष्मी भली तेणु भगवान को भली आउ कहीं है पारिबे नाही बोली सेठी लिखाई ए निराकारवादी माने बुझुचंती कला भगवान कौन सी प्रतिमा ना तेबे भगवान कहीं देह धरती तुलसीदास गोस्वामी लिखिदेले कहले देह न धरिले भक्त माने काहाकू ध्यान न करिवे भगवान जदि नाम न धरिवे भक्त माने कौ नाम को जपिवे बुझी पारुचंदी ना कथा तेबे भगवान कहीं देह धरती कहीं नाम धरती कौन 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 पाई तुलसीदास गोस्वामी लिखि देइचंती कहले राम एक तापसती अतारी राम एक तापस नाम कोटि खल कुमति सुधारी नाम कोटि खल श्री राम जय कहले राम एक तापसती अतारी राम जने तपस्वी स्त्री गौतम ऋषि स्त्री अहल्या को उद्धार करदेले पदस्पर्श देकरी किंतु नाम राम जो नाम धरले से कौन लाभ है कहले राम एक तापसती अतारी तीय शब्दटा तो आपणकर मयूरभंज वाला भल बुझे कारण ये स्त्री की कहती तिरला मयूरभंज हाँ कि नहीं कहले राम एक तापसती अतारी राम जने तपस्वी स्त्री की उद्धार करी देले अहल्या किंतु राम को नाम नाम कोटि खल कुमति सुधारी भगवान रामचंद्र जो नाम ग्रहण कले ताकू जपिकी कोटि कोटि खल भी सुधार आसीगला चोर भी साधु हो गले श्री चैतन्य महाप्रभु जीवनी जानी तुलसीदास गोस्वामी जीवनी जदि पढ़े तेबे कौन ना चोर माने भी नाम जपिकी साधु हो जाइछन्ति तेबे भगवान जदि नाम न धारण न करिवे रूप न धरिवे रूप न धरिले ध्यान करिवो काहाकू जदि नाम न धरिवे जपिबो काहाकू आ
ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି କେମିତି ହବ? ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନ ଦେହ ଧରନ୍ତି ମାନେ ସାକାର ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ହନୁମାନଜୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପୁଥିଲେ ବୋଲି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଶରୀର ଭିତରେ ଅମୃତ କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ହନୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅମୃତ, ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅମୃତ, ଅମୃତ ଅମୃତକୁ ଚିହ୍ନିଲା। ଆଉ କଥାଟା ବୁଝିଲା? ନାମ ଜପୁଥିଲେ, ସିଏ ବି ନାମୀ, ଇଏ ବି ନାମ କଲା ବାଲା, ସିଏ ବି ନାମ ଜପିଲା ବାଲା, ସିଏ ବି ନାମ ଜପିଲା ବାଲା। ଆ ଦି ଜଣ ଯାକର ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, ଆହା ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ କିଓ ବିଭୀଷଣ, ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ରାମ ନାମ ଜପିଛ, ରାବଣ ତମକୁ ଆଜି ଯାକେ ଛାଡିଛି କେମିତି? କହିଲେ ମାନେ, କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ନାମକୁ ଜପୁଛ ମାନେ ସିଏ ତ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡଗରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମର୍ଡର କରିବା କଥା। ତମେ କହିଲେ ମୁଁ ପରା ବୁଦ୍ଧି କି କରି ଆଗୁସାର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଭାଗବତ ଲେଖା। କହିଲେ ମୁଁ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଛି ନା। କହିଲେ କଣ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଛନ୍ତି? କହିଲେ ଦିନେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡଗ ଧରି ଦୂତ ଠାରୁ ଶୁଣିଦେଲା ରାବଣ ମୁଁ ରାମ ରାମ ନାମ ରାମ ଜପୁଛି ବୋଲି, ଆସିକିରି ପଚାରିଲା କିରେ ମୋର ଲୁଣ ଖାଉଛୁ? ସେ ତପସ୍ୱୀ ବାବାଜୀ ଯୋଉ ବନବାସୀ ରାମର ଗୁଣ ଗାଉଛୁ? ମୋ ଲୁଣ ଖାଉଛୁ ତା ଗୁଣ ଗାଉଛୁ? ବିଭୀଷଣ ତ ଜ୍ଞାନରେ ଭୀଷଣ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଭୀଷଣ, ଶକ୍ତିରେ ଭକ୍ତିରେ ଭୀଷଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ମୁଁ କଣ ରାମ ନାମ ଜପୁଛି? କହିଲେ ଆଉ? କହିଲେ ହେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ରାବଣ ପିତୃତୁଲ୍ୟ, ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ମୋ ଭାଉଜ ମନ୍ଦୋଦରୀ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଦେବୀ, ଭାଉଜ ମା ସମାନ, ତେଣୁ ସିଏ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ମୁଁ ମୋର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଜପୁଛି ନା। କହିଲେ ତୁ ତ ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଜପୁନୁ। କହିଲେ ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଏଡେ ବଡ ନାମକୁ ଜପିବ କି? ଏଟା ସର୍ଟକଟରେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଛି ନା। ଏଟା ବଡ ନାମଟା ବୀଜ ନାମ କରିଦେଇଛି, ଦିଟା ଅକ୍ଷରର ବୀଜକୁ ରଖିଦେଲି, ଆଗ ଅକ୍ଷର ରାବଣର ରା, ମନ୍ଦୋଦରୀର ଆଗ ଅକ୍ଷରଟା ମୁଁ ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆଉ କାହିଁ କହିବି, ଏଟା ସୁବିଧା ହବନି, ତେଣୁ ବୀଜାକ୍ଷର କରିଦେଇକି ରାମ ରାମ ଜପୁଛି। ଆଉ ରାବଣର ବୁଦ୍ଧି କେତେ, ଅହଙ୍କାରୀର ବୁଦ୍ଧି ସେତେ ଖଟିବନି, ଏଟା ମୁଣ୍ଡା ବୁଦ୍ଧି। ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ବଳ ବହପ ଅଛି, ଚତୁର୍ବେଦୀ ହେଇଥିଲେ ବି ବେଦ ଜ୍ଞାନକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥୋପକଥନ ହେଇଗଲା। ହନୁମାନଜୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରି ଦେଖାଗଲେ ବିଭୀଷଣକୁ ହନୁମାନ, କାରଣ ମୋ ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତିଛବି ତୋ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠୁଛି ରେ ଧନ। ମାନେ ଭକ୍ତ ଯଦି ନାମ ଜପିବ, ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଲୁହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଚୁମ୍ବକ ଆସିଲେ ଲୁହା ଭିତରେ ବି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ହନୁମାନଜୀ ସବୁବେଳେ ରାମ ନାମ ଜପିବାରୁ ଏ ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାରୂପ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପ ସେଇ ରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ହନୁମାନଙ୍କ ରୂପଟି। ବିଭୀଷଣ ତ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଇଏ ତ ରାମ ସ୍ୱୟଂ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଇଏ ତ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ବିଭୀଷଣ ସନ୍ଦେହ କରି କହୁଛନ୍ତି ହେ ହନୁମାନଜୀ, ମୁଁ ତ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକ, ରାକ୍ଷସ, ସତରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ କୃପା କରିବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି କେବେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମତେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବେ, ଆଡ଼ ନୟନରେ ମତେ ଟିକେ ଚାହିଁବେ ନା? କରୁଣା କଟାକ୍ଷ ପ୍ରକାଶେ ଭକତ ଜନ ଦୁଃଖ ନାଶେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କଟାକ୍ଷରେ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେବେ ନା? এইভଳି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତାମସ ତନୁ କଛୁ ସାଧନ ନା, ମୁଁ ତ ଶତ୍ରୁ, ମୁଁ ତ ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୁଁ ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୋର ସାଧନ ଭଜନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ମୋର ସାଧନ ଭଜନ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ତେବେ ତାମସ ତନୁ କଛୁ ସାଧନ ନାହିଁ, ପ୍ରୀତିନ ପଦ ସରୋଜ ମନ ମାହି, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଦ୍ମରେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ତେବେ ରାକ୍ଷସ ଶରୀର, ସାଧନ ଭଜନ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋର ପ୍ରୀତି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଧର୍ମ ବାଟରେ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚାହିଁବେ ନା? ଅବମୋହି ଭା ଭରସ ହନୁମନ୍ତା, ବିନୁ ହରି କୃପା ମିଲହି ନେହି ସନ୍ତା। ତମ ଭଳି ସନ୍ଥକୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାଇଛି ମୋର ଗୋଟେ ଭରସା ହେଇଛି, ସନ୍ଦେହ ତୁଟି ଯାଇଛି, ବୋଧେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ବୋଧେ କୃପା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ଥକୁ ମୁଁ ପାଇଥାନ୍ତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ? ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାଟା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋର ଭରସା ପାଉଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିଚ ବୋଲି ଘୃଣା କରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ହନୁମାନ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହନୁମାନ କହିଲେ ମୋର କୋଉ ଜାତି ବଡ ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରାକ୍ଷସ ଜାତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉ ବଡ ଜାତି ଯେ
सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। बोल सियावर रामचंद्र जी की। भाई भौणी माने आपण भितर जदि जाति भेद थिब आपण भी लक्ष्मी मानवसा गुरुवार कले भी लक्ष्मी की पाइबे नहीं। सत कहना जाति भेद रखिबे नहीं। प्रभु सबरीर अईठा फल को खाई दासिया बाउरी नड़िया को नहीं बुझीपार ना। तेणु एठी कौन शिक्षा देले विभीषण जी हनुमान कहले मोर को बड़ जातिटा जे मु तो मांकड़ जातिर मु तो पशु तम भितर तम गुण थिले राक्षस थिले भी तमर तो मनीषर शरीर किंतु मु तो पशु पशु होकर तो मते प्रभु भल पाती से जी सेवक जी सदा सर्वदा प्रभुंकर सेवारे लगे प्रभु ता उपरे विशेष दृष्टि दे थांती। जाति भेदरे थिबा व्यक्ति होची श्रीरामंकर द्रोही। तेणु मन ध्यान दे शुणिबे। विभीषण कथा शुणी हनुमान जी कहले हे विभीषण मु भी बड़ जातिर नुहे कहू कौन में परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधि जाना। कपि मांकड़ होची चंचल स्वभावर खाइब कम भांगिब बेसी। तेणु एइतिपाई आमको सारा जगत बा भल पाएनी। प्रात ले जो नाम हमारा तेही दिन ताही न मिले आहारा। संसार लोक मैंने कहती जन जनकर कथा जदि पड़गला कहे ता ना धरनी आज भात मिलबनी किंतु आउ किछि लोकंकर कथा हेले कोन कहंती ए भल लोक कथाटा आज मने पकईचो हो आज दिनटा भलरे कटिबो शुभरे कटिबो। तेणु हनुमान जी कहउचंती आमे परा मांकड़ जाति जे प्रात लेई जो नाम हमारा सकाळु सकाळु जे मांकड़ देखिदेला कि मांकड़ नाटा नहीं गला तेही दिन ताही न मिले आहारा से दिन ताको आहार मिलिबो ना। आमे एते खराप लोक खराप जाति। तेणु सजन वृंद विभीषण ठारू ताहापर एमिति कथबार्ता करू करू माँ जानकींकर खबरटी जेतले पचारि देले मन दे शुणिबे। जानकींकर वृत्तांत जेतले जानिले हनुमान कहिले से अशोक वृक्ष मूल रे माँ जानकी अनिंद्या सुंदरी एका राक्षसी मानक माया रे पड़ी जीवनी भारी माया करंती राक्षसी माने मुदिटा जदि तमठु नहीं जिवे बड़ अडुआ होई जीवो पितांक कार्य रे सफल न होई असफल होई जीवो। तेणु देखिब जणे अनिंद्या सुंदरी नारी किंतु सबु बेले क्रंदन रता स्वामी की झुरी झुरी सब बेले कांदुचंती। तेणु तांकु टिके भल करी परखिकरी देखिब तमे तो भक्त तमे निश्चित पर दिव्य दृष्टि संपन्न तुमे माँ जानकी को जानी परिबो। एबे तुमे जाओ सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे।